मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे यहाँ मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐप्स ऐसी चल रही हैं कि जिनका मकसद इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे बटोरना है, और इनके जाल में ज़्यादातर लोग वो फंसते हैं कि जिनका ताल्लुक या तो लोअर मिडिल क्लास से है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और यही वजह है कि इन ऐप्स को चलाने वालों का, यानी कि ये फ्रॉड करने वालों का पकड़े जाना भी नामुमकिन होता है। रब भी वारिस है माड़े बंदे का भी। इस तरह के फ्रॉडियों की पकड़े जाने की अखबार में भी खबर नहीं आती। वो इन्होंने कहाँ से पकड़े जाना जूरी पहलवान, झूठे को तो पाँव नहीं होते। हाँ ओए आहो बाली पुत्र, झूठे के पाँव नहीं होते मगर लालची के पाँव भी होते हैं और हाथ भी होते हैं। हक है लालची बंदा खुद चल के झूठे के पास पहुंच जाता है जी। और उससे खाम खा लुटिया जाता है, फिर बैठ के मोहल्ले के बेंच के ऊपर रोने रोता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਲਾਲਚ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ओ बाली बेटे, जब छीछड़े नजर आ रहे हो तो बिल्ली नहीं हटदी, नहीं हटदी सजना, नहीं हटदी। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਕੋ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸ਼ੈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਨਿਕਲਦੀ ਓ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝਣੀ ਮੈਂ? ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੂਰੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਰਹੀ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਬਦਲ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। हाय 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 हाय, ये होता है लीडर जिसको हजारों साल पहले की तारीख का भी पता हो। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। खैर खैर, ऐसे ख्वाजा साहब तुसी इस दौर की गल कर रहे हो। जे बिल्ली की मिसाल देनी जे ते जूरी प्रभाव नूं बिल्ली ना कहो ते मुंडे नूं बिल्ली कह लो। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਝੂਰੀ ਤੋਂ ਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ख्वाजा साहब ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਭਤੀਜਾ ਏ, ਮਗਰ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਉਦਣ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟਣ ਡੇ ਆ ਸਹੀ, ਇਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੁਲੈਰੀ ਚੜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਓ ਲਾਲਚ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਸੋਚਿਓ ਸਮਝਿਓ मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ओ इन्वेस्टमेंट कर बैठा है कहीं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ। गल ये है आलिम मुमताज साहब, आपको जिस चीज के स्पेलिंग ही नहीं आते, आप क्यों उसमें पंगा ले रहे हैं? ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਜਾਵਲ ਡੋਗਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਸ ਫਰਾਡੀਏ ਨੂੰ। अब्बा जी, असलम साहब उधर सजावल डोगर के डेरे पर ही बैठे हुए हैं। लो फिर मुझसे लिखवा लो, ये डोगर तुम्हारा जो है ये उस फराडिये से अपना हिस्सा वसूल करेगा। हो ना हो ये उसके साथ मिला हुआ है। बड़े नारे मारने डोगर दे, ये उन्ना ही तेनू लुटाया ही फिर ओदे कोलों। ख्वाजा साहब खैर है, क्या हुआ है? क्यों बेचारे जूरी के लत्ते ले रहे हैं? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ हैं ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੇ। अच्छा, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ। ਵਾਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦੌਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, मोहतरम ਵੱਡਿਓ, चेयरमैन साहब,
सोना एवें नहीं बनता। लाला ताला ने कहता है सोना बनसा अमला नाल। ਹਾਏ ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ। ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਜੇ ਕਰੀ ਝੂਠਾ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। और जदों इन्हें वेखिया कि औरतें ज्यादा पैसे देती हैं तवीज धागे के, तो दरवाजे ते लहाता ससू यहाँ सिर्फ खवातीन को दम किया जाता है। बस फिर सारे महल्ले वाले फड़ के ओ पिंजिया इनू, ओ पिंजिया। ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਦੇ। ਜਾ ਉੱਠ ਸਜਾਵਟ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ? ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੀਡਰ? ਇਹ ਜੇ ਲੀਡਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਜਾਏ ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਏ ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨशिप का मामला है। एक बारी जिते जे भले वक्तां चली साहब, मुड़ के हर बारी इलेक्शन आ रहे हैं, मगर महल्लेदार चेयरमैन हम ही को कहते हैं। ਵਾਹ ਯਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ। यार मैं तो उस वक्त से हैरान हो रहा हूँ, आप माशाल्लाह समझदार आदमी नजर आ रहे हैं, आप कैसे इस फ्रॉड में फंस गए? शाबाश अली मुमताज साहब, आपको ये समझदार आदमी नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे आपको तो कैद भी नहीं हुई, आपकी नजर कैसे खराब हो गई है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। देखे ना जरा, इतनी को तो इसे अकल है। और जख्मों पे नमक भी ऐसे छिड़क रहा है जैसे फ्राई अंडे पे छिड़कते हैं। हमें क्या कहते हो? तुमने खुद अपने पाँव पे थौड़ा मारा है। ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਤੇ हैं पैर पे। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਥੌੜਾ ਹੋਵੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾ ਤੇ ਦੂਆਂ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। लालची आदमी है अली मुमताज साहब, हाय। आपको क्या बताएं, इसको लालच ले डूबी है। अब पिछले साल भी फराड इतना होया जी। क्या मतलब, वो क्या है? ओ जी ऑनलाइन बकरा खरीद बैठा था अच्छा। और सारे महल्ले को दिखा रहा है कि ये देखो जरा मैंने बकरा खरीदा है। ਅੱਛਾ वो किसी ने ऑनलाइन बकरे लगाए हुए थे कि ये बकरे इस वक्त बड़े सस्ते हैं, छोटे हैं। ਹਾਂ इस वक्त इस बकरे की ये कीमत मुकर्रर है, आप इसका मंथली खर्चा भेजते रहे, हम इसको पालेंगे। ਅੱਛਾ और ईद के नजदीक आपको उसी कीमत पे बकरा मिल जाएगा जो 6 महीने पहले तय हुआ था। अच्छा। आप खुद खरीदना चाहें तो खुद खरीद लें, वरना हम बेच के आपको प्रॉफिट दे देंगे। ते सरकार ने 2 बकरे खरीद ले ਓ और रोज बह के बच्चियां ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਐ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ ऐदी दस्ती खानी हूं मैं। और ऑनलाइन उनके नाम भी रख लिए, चिन्कू ते मिनकू। सारा टब्बर आपस च लड़ते सन, मैं ਇਹਦੀ पुठ खावांगा, मैं ਇਹਦੀ रान खावांगा, मैं ਇਹਦੀ दस्ती खावांगा। ਉਹ दस्ती ते खादी नहीं गई, दस्ती फराड हो गया इन्हां। ਓਏ ਉਹ ਵੱਡੀ तो 2 हफ्ते पहले उस एप्लीकेशन तो सारे बकरे ही डिलीट हो गए। ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਈਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਈਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। आओ जी टिबरी। जनाब खैर है, मोहल्ले में किस इशू पे डिस्कस हो रही है? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਡਿਸਕਸ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ऑनलाइन सरमायाकारी कर बैठा है, समझाया है बेटे ये सरमायाकारी नहीं, ये सरमाया कारोकारी है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। यार ये मैं हैरान हूँ कि अब तो अनपढ़ लोगों को या सादा लोगों को भी समझ में आ गई है कि ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एक फ्रॉड होता है। ਹਾਂ जूरी, तुम किस तरह से इन लोगों के चक्कर में आ गए? ਬਸ जी, और यकीनन उन्होंने तुम्हें बिजनेस के और भी आइडियाज दिए होंगे। ला जी मुझे तो लग रहा है कि एंकर मियां भी लुट चुके हैं। ਤੁਸੀਂ किन्ने पैसे लाए ने जनाब? ओ भाई मैंने क्यों पैसे लगाने हैं, मैं कोई आप लोगों की तरह बेवकूफ़ हूँ? हरगिज़ नहीं।
देखो, इस तरह के लोगों के हत्थे वही लोग चढ़ते हैं जो सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, जिनका काम करने को दिल नहीं करता, आसान रास्ता तलाश करते हैं कि किसी तरह से बस पैसे हाथ आ जाएं। हाँ जी। इस तरह के लोगों को ही फ्रॉड किया जाता है और उन लोगों को धोखा देकर उनसे सब कुछ ले लिया जाता है और बाद में फिर उनका कुछ पता नहीं होता। काम चोर तो जूरी इतना है जी। इसका सुसर फाउत हो गया। इसके सालों ने कहा जाके अब्बा जी की कबर कढवाओ। राह च जान डे सी उत्थे जलेबियां वाली दुकान लभ गई इनू, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਬਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਬਰ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो गया जी? ਉਹ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। करो और यार ठहर जाओ, उनकी पहले बात तो सुनने दो। गल समझ जो आ गई तो सुनिए की। यानी यक ना शुद्ध दो शुद्ध। जमील साहब बताएं आपके साथ क्या हुआ है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। नहीं बताओ क्या हुआ है? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਅਸਲਮ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਠਾ। बस ते मार्केट उत्ते नहीं गई, पैसे उत्ते चले गए। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਫਟਰ ਨਾ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿਆਂ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? मना करता रहा हूं कि ना इस तरह की बातों में भला करो, ਹਾਂ मेहनत कर, हसद ना कर। हाय। तू लंघ जा साडी खैर। वाह वाह। अब तो बसों पे लिखा हुआ मौजूद है। तुसी क्यों मेहनत नहीं करते? लालच कीती तुसी। ए तेरे नाल बैठा ही ए की ना ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ? ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ लिए। ਉਹ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਅਸਲਮ ਦੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ? ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਨੂੰ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ? नहीं क्यों पूछो? क्यों मेरे को है ही नहीं। मैं इसीलिए सियानफत करता हूँ। सारे पैसे मैं तुम्हारी भरजाई को रखना। वो कहती है खाजा तू मासूम आदमी है, मैं तेनू भी लुट लेगा। साढ़े तेरे पैसे घर रख, अपने पैसे संभालो यार, मेहनत करके आप लोगों ने कमाए हुए हैं। ਹਾਂ ओए इत्थे ते हर दूजा बंदा दूजे नू लुटन टुरे है। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ बस यार, मासूम आदमी है, लालच में आ गए। ਓਏ ਏਡੇ ਵੀ ਕਾਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਜੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਹੈ ਬਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਜੇ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅਛੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਲਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਬੰਦੂ ਲਾਓ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਬਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਬਲਾ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਦੀ ਕੋ ਵੀ ਬਲਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਂ? ख्वाजा साहब, आपके मोहल्लेदार बेचारे मुश्किल में हैं, उस फ्रॉडियो को ढूंढ के इनके पैसे दिलवाएं। ਲਓ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਜਾਵਲ ਡੋਗਰ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਜਾਵਲ ਡੋਗਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ओ यार, ख्वाजा साहब की SHO के सिपाही के साथ लगती है, वापडा के लाइनमैन के साथ लगती है, और अब सजावल डोगर के गनमैन के साथ लगती है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਜੀ? ਵਾਹ ਬੱਲੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕ 'ਚ ਭੀੜ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 1.5 ਕਪਾਈ ਬਚਦੇ ਜੇ।
वो हमारी तरफ से 1.5 पाओ या 2 मानो, बात इधर वो होगी जो हक सच है। हक है। ਉਹ ਡੋਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਛਬਛਬਾ ਦਬਦਬਾ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ में बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅਸਲਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅਸਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਫਰਾਡੀਆ ਫਰਾਡੀਆ ख्वाजा साहब तमीज से बात करें। ख्वाजा जी वो मेरे साथ आया है, कोई तमीज कोई लिहाज भी होता है, इथे कोई चन्न ना चढ़वा लेना। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ? ओए बाली साडी लाश तो लंघ के ख्वाजा साहब तक जाएगा। ਉਹੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। और मुजफ्फर पुत्री इधर आए, दौड़ के आ, दौड़ के जा मेरा पुत्र अपनी चाची ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ हैं, चाय भेजे। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਾ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। फ्रॉड? कौन सा फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? और फ्रॉड नहीं तो और क्या, हमने आप पे एतबार किया, आपने सारा पैसा ही डुबो दिया। भला बड़े भाई के साथ कौन फ्रॉड करता है? लो ये तो अच्छा हो गया है, जूरी ने तो बड़े भाई की पोजीशन संभाल ली है। जमील बेटे तुम भी कोई रिश्तेदारी निकालो, आराम से बैठ के गल बात करके कोई तस्फिया कर लो। ਹਾਏ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਸਫੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ? बेटे आप लोग जरा कोई बात तय कर लो, मैं बाथरूम से होके आता हूँ। ओ ख्वाजा साहब आप बैठे, आप चेयरमैन है मोहल्ले के, अब मसले को हल करवाएं। आप किधर जा रहे हैं? आली बेटे आपको नहीं पता ये अंदरून शहर है, यहाँ पहले भी एक पंचायत में मुंसफ की टांग टूटी हुई है। क्यों टूट गई टांग? आप घबराएं नहीं, मैं बैठा हुआ हूं, पर आराम से बैठ के बात करें। आराम से बात होनी चाहिए और होती भी है। ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠੋ। नहीं नहीं अच्छे लोग ने सारे, देखो असलम भी भला आदमी है, ते जूरी और भी चंगे लोग ने, जमील ते है ही मेरा पुत्र। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। आहो बेटे बैठो तो सही ना, बैठो तो सही ना, आप बैठो बैठो। असलम साहब आप पहले ये बताइए, आपने क्यों किया इस बेचारे के साथ ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड? कौन सा फ्रॉड किया है मैंने? किसके साथ फ्रॉड किया है मैंने? और भाई मेरे साथ किया फ्रॉड, आपने असलम नाम की एप्लीकेशन बनाई हुई है, मैंने 50,000 रुपया उस पर लगा दिया है। मैंने एप्लीकेशन? मैं तो सर कैसे बनाऊंगा एप्लीकेशन? ये बटनों वाला फोन यूज करता हूं मैं। लो इसमें तो जूरी गलत निकला है। और मैं नहीं गलत निकल आया, असलम नाम की एप्लीकेशन बनाई हुई है जिस पे मैंने पैसे जमा करवाए हैं। तो भाई साहब पूरे पाकिस्तान में अकेला मैं असलम हूं? जाके ढूंढे कौन सा असलम है जिसने आपके साथ ये किया है। ਹਾਏ यार तुम कैसे जाहिल आदमी हो झूरी, तुमने असलम नाम पढ़ के पैसे लगा दिए, तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे मोहल्ले का ही असलम है। ਓਏ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। बेटे मैं जरा गोश्त ले आवा, फिर वो मुक जाता हुंदा है। ख्वाजा साहब आप किधर जा रहे हैं? आप बैठिए। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪੁੱਠ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जमील साहब आप तशरीफ रखिए, ये बताइए कि आपने लाख रुपया असलम को कैश में दिया था? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। मैंने आपको कब कहा शेयर खरीदने के लिए? और तू सुनाया नहीं सी कि मेरे कजन ने शेयर खरीदे ने, और लाखपति तो करोड़पति हो गया। ਹਾਏ तो मैंने सुनाया है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप भी शेयर्स खरीदें। ਲੋ ਓਏ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਏ एक मिनट जमील साहब, आपने असलम की बातें सुनकर शेयर खरीद लिए, अब मुद्दा उसी पर डाल रहे हैं। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਣ ਡਈ ਹੈ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੇਰੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗੈਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ।
नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, शायर कहता है, बिजली के खंबे पे चढ़ जाऊं मैं उतरूं ना। नाज़रीन, ये चूंकि मेरी खबर से रिलेटेड गाना था इसलिए मेरे येन में आया तो मैंने कहा आपकी खिदमतें पेश कर दूं। क्या बात है जेम्स बॉन्ड, बहुत अच्छे। आपका गाना सुन के दिल करता है चाहत फतेह अली खान को सुरों का बादशाह कह दूं। और मेरे को कसम चुका लै मिर्जा जिस पिंड दे ना इन सिवाय इस गाने दे कोई गाना नहीं आंदा। हद हो गई है यार, एक अच्छे भले अपना फोक गुलकार को बेइज्जत कर देता है। ला जनाब, खबर कुछ यूं है, जी बर्तानिया में परेशान हाल शख्स बिजली के खंबे पर चढ़ गया। मेन सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से 22,000 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। पुलिस और इमदादी अदारों ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद इस शख्स को नीचे उतार कर गिरफ्तार कर लिया। ये पाकिस्तान की खबर है? हयोर, मैं सब तो पहले बर्तानिया दसे है, मगर चूंकि खबर इस तरह की है कि हमें यूं लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर ही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। जी जी। ये बर्तानिया की खबर है और ये वाकया वेस्ट यॉर्कशायर में पेश आया। अच्छा। जहां ये शख्स जो ज़हनी दबाव का शिकार था, हाँ। ये गाता हुआ खंबे पे चढ़ गया। बिजली के खंबे पे चढ़ जाऊं मैं उतरूं ना। पुलिस को इत्तला मिलने पर इलाके में इमरजेंसी सर्विसेज तलब की गई। अच्छा। और इस लाइन की बिजली भी बंद कर दी गई। 3 घंटे बाद जब ये शख्स नीचे उतरा तो पुलिस उसे पहले अस्पताल लेके गई। सही। वहां उसकी तिब्बी जांच पड़ताल करवाई, उसके बाद उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया। वाह जी वाह। मैं सोच रहा था कि देखो वहां पे जो मुजरम हैं उनके भी कितने नखरे होते हैं। यहाँ को मस्कीन अगर बिजली के खंबे पे चढ़ जाए, और अक्सर चढ़ते रहते हैं, हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁੱਤੀ 'ਚ 6 ਮਾਰਦੇ ਡਜ਼ ਡਜ਼ ਡਜ਼। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀਪ 'ਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਟਹਿਰਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਓਏ? ਇਹ ਬਾਪੜੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ हुकूमत की मलकीत। सच्ची मुच्ची SHO ऐसे बंदे पर कचीचियां लेनी शुरू हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो तहजीब वाली कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें हैं, जी वो सोचती हैं कि शायद बेचारा पागल सी तां चढ़ गया। अच्छा जी, बर्तानिया में किसी का खंबे पे चढ़ जाना एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, जी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया किसी का खंबे पर चढ़ना मामूल का तमाशा होता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे वो मुहावरा है ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हाँ जी। इसी तरह हमारे कई खसियाने या परेशान लोग भी खंबे को अपने कथारसिस और तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਡਾ ਲਾਣ ਚੜਿਆ। जुल्फी बड़ा तेरा गड्डी ते लाने वाली झंडी वर्गा मुंह है। बेटे, अब तो इस तरह के बहुत से वाकयात हो चुके हैं कि खंबे पे चढ़ा हुआ बंदा कोई ना कोई एहतजाज करता हुआ पाया जाता है। बिल्कुल। हर तीसरे दिन किसी ना किसी मसले का शिकार एक बंदा खंबे पर मौजूद होता है, हाँ जी बिल्कुल। जिसे उतारने के लिए मुख्तलिफ अदारों के लोग कोशिश कर रहे होते हैं। जी और अब तो सोशल मीडिया है, हर बंदा तो अपनी जेब से कैमरा निकाल के तो फिट कर लेता है। बिल्कुल सर। हाँ जी, जेम्स बॉन्ड ना बाहर के मुल्कों च ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਅੜੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਖੰਬਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाय हाय। सही बात है। चंद दिन पहले ननकाना में एक शहरी खालिद बिजली के खंबे पे चढ़ गया था, आपको याद होगा जी जी सर। कि जी मेरी बीवी नाराज है तो जब तक वो वापस नहीं आएगी मैं खंबे ते ही रहांगा। हाय। ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗੂਰ ਲੰਗੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਖੰਬੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਲੰਗੂਰ ਹੈ। ਆ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖੰਬੇ ਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ। उसने कहा जब तक मेरी बीवी मानेगी नहीं मैं खंबे पे ही रहूंगा हाय हाय। और इधर ही बैठ के गाता रहूंगा। बिजली के खंबे पे चढ़ जाऊं मैं उतरूं ना।
उसे नुकसान से बचाने के लिए 2 से 3 घंटे बिजली की सप्लाई बंद करना पड़ी थी। हाय हाय। अब इतनी देर तक वहां जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, फिर पुलिस और सिविल डिफेंस वाले ऐलान करते रहे, उसकी मिन्नतें करते रहे, उसकी बीवी को बुला के ले आए फिर, अच्छा। और तब कहीं जाके वो नीचे उतरा। लेकिन उसके बाद की कार्रवाई यह ऑफ द रिकॉर्ड हो गई थी। वाह वाह वाह। यकीनन जब वो खंबे से नीचे उतरा होगा तो उसकी बीवी ने पुलिस वालों को कहा होगा कि भरा मेरे तुसी जाओ ना गो मेरा काम तुसी भरा फिक्र ना करो, मैं रबड़ दी जुत्ती पा के आई हाँ, इन्हू लैंदे आधा मिनट लगता, जाओ तुसी ताड़ी खैर। हाँ अलबत्ता जाते हुए इंतजामिया ने ये जरूर कहा होगा कि भैन जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਸਤਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਥਾਣੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ। अच्छा वैसे तो बीवी से नाराजगी तो इतनी आम बात है कि हर शहर में कोई ना कोई शौहर बीवी की नाराजगी दूर करने के लिए खंबे पे चढ़ जाता है। इससे आप ये ना महसूस कीजिएगा कि ये भी कभी खंबे पे चढ़े हैं। मगर कई वाकयात हैं। 2025 में लाहौर में बीवी से झगड़े के बाद एक रिक्शा ड्राइवर बिजली के खंबे पे चढ़ गया था। खंबे पर चढ़ने वाले शहरी नवाज की घर में लड़ाई हुई। अच्छा। और फिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उसका चलान हो गया। अच्छा। आपको याद होगा, बस फिर वो खंबे से चढ़ गया और पुलिस समेत मुख्तलिफ अदारों के लोग 5 घंटे तक उसे मनाते रहे। तेरी मेहरबानी है, एक करी थले आई, तेन खुदा दा वास्ते थले आ जा, तेरी मेहरबानी आ तो सही मेरा वीर, इधर ते वेख तेरे डब्बे च तेरे लिए बिरयानी लैके आया, थले ते आ यार। आया मेरा वीर, तेरे चलान भी माफ हो गए ने, तेरे रक्शे च गैस भी फुल करा के देने आ, थले ते आ यार। भरावा तू साडा भरा है, आ मेरा पुत, इधर आ मेरा पुत, आ जा आ जा आ जा, ओ जो मेरे पुत। यार हक जाते हैं बेचारे ये लोग भी। हाँ। और फिर 2018 में कुरंगी में कराची जी जी बिजली की मेन लाइन वाले खंबे पे एक शख्स चढ़ गया था। और वही जाके उसने बैठ के यही गाना शुरू कर दिया, बिजली के खंबे पे चढ़ जाऊं मैं उतरूं ना। अच्छा, ये जो शख्स था कुरंगी खंबे पे चढ़ा जी, इसका मुतालबा जो था वो पुठा था। हाँ। उसका यह मुतालबा था कि मेरी शादी कराओ वरना मैं यहां से छलांग लगा दूंगा। उसे भी फिर 4-5 घंटे मिन्नत तरलों के बाद बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया था। हाय हाय। हाँ जी, बल्कि मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने थल्ले रिश्ते भी बहांदे रहे। अच्छा। उन काली चो जो जे रिश्ते बहांदे सन पुलिस वाले, रिश्ता वेख के थोड़ा जिहा होर उत्ते चढ़ जांदे सी। ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ, ਥੱਲੇ ਤੇ आ गया 4-5 घंटे मिनते तरले के बाद वो नीचे, मगर उसकी जिद वही थी कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी ना कराई तो मैं दोबारा खंबे पे चढ़ जाऊंगा। लो जी। पुलिस वालों ने उनको बड़ा समझाया। एसएचओ ने भी बेचारे ने दसिया कि पुत्र अगर मेरी जिंदगी के हालात सुन ले तो कभी ब्याह का नाम ही ना लवे। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि किसी वालदार ने उसे ये भी कहा कि एक बारी अजीजी नूं मिल लै तो तेरा शौक लै जाएगा। हुण तो तू शादी कराने से खंबे ते चढ़े है ना, फिर तू बीवी तो आक के खंबे ते चढ़ना है। बहुत समझाया पुलिस वाले ने, फिर अखीर एसएचओ ने फड़ के कुटिया। उन्हें कहा एडी मुश्किल मैं एसएचओ लगा लानतिया, तू मैनू रिश्ते कराने वाली माई समझे है? या थाने के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ उस पे थाना सदर के थले ब्रैकेटों में लिखा हुआ है यहाँ हर किस्म के रिश्ते कराए जाते हैं। भाई नहीं आउंडे तू। अच्छा, ये सारे मयाया वाकयात हैं। ऐसे ही लोग उस वक्त तरस खा रहे होते हैं कि हाय हाय बेचारा देखो चलान तो चढ़ गया खंबे पे। हाँ जी। तो बाद जो पता लगा बीवी ना लड़े ऐसी। अब देखो ना, ये भाई जो कह रहा है मेरी शादी कराओ, यार खंबे ते चढ़ के अगर शादी हुंदी होवे तो सारे कावां दे विआह हो जाण। वो तो बहिंदे ही खंबे दे उत्ते ने जाके। ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਵੀ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਘੌਂਸਲਾ, ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਲਾਣ ਆਇਆ।
ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜੀ ਗੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਬੇ ਤੇ, ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा जी 2025 में इस्लामाबाद में एक कार वाश करने वाला बंदा जी जी पुलिस के गलत चालान की वजह से एहतजाजन खंबे पर चढ़ गया था। अच्छा एहतजाज के दौरान शहरी मुसलसल नारे लगाता रहा कि मेरा गलत चालान क्यों किया, मेरा गलत चालान क्यों किया। हाय पहले तो वो कई घंटे खंबे पे बैठ के पुलिस वालों को तंग करता रहा, लेकिन जब पुलिस वालों ने ऊपर आके पकड़ने की धमकी दी ना, तो फिर आर्मी चीफ से मोहब्बत के नारे लगाता नीचे आया। हाँ उन्हें क्या कि पुलिस वाले इन्हें जी डर जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि ये शहरी इससे पहले भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए इसी तरह खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर चुका है। अच्छा मेरा ख्याल है उसे नुसरत फतेह अली साहब बहुत पसंद थे। हर दूसरे दिन खंबे पे बैठ के गाता था, बिजली के खंबे पे चढ़ जाऊं उतरूं ना। तुम्हारे पूरे वांडो में कोई बंदा ये कह सकता है? नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस्टर सुशांत हो जाओ जरा शांत। मैच तो हम पहले भी जीते हैं और अब भी जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन आपकी टीम ने हार के जो हमारे कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, उस पे हमारी कौम बहुत हंसी थी। अच्छा तो गौरी साहब, अभी पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ, आपने डेफिनेटली देखा होगा। मैं आपको बात करके मजीद हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अब बैठे हैं और पहला प्रोग्राम है उस मैच के बाद से, तो बात करना भी ज़रूरी है। ये बताइए कि उस मैच को लेकर आपकी क्या राय है? होठां ते जंदरे लाल मुंहों कुछ ना बोल, मिलेगा जुल्म दा बदला, मिलेगा जुल्म दा बदला। चौका छक्का हिंदुस्तान बोलो। गौरी साहब, मैं आपसे क्रिकेट पे आपकी राय पूछ रहा हूं। वो पाकिस्तान दे 13 ते और 3 वो पता लगा जे ये तो सौ गए मैच में मेरे। मेरा ख्याल है गौरी साहब मैच देख के पागल हो गए हुए। मिलेगा जुल्म दा बदला। यार है दुआएं या बददुआएं, और तो कुछ नहीं है। यार आप लोगों ने तो सर ही नीचे कर दी हैं। गोगा जी आप बताएं, मैच पर आपकी क्या राय है? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੋਨੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਲੜਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ। ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ। पहला साहब आप बताइए, आप क्या तबसरा करेंगे मैच पर? सर साढ़े वाल तो लाइट ही नहीं सी सर। ਓ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ੈਨਫਰੀਦ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਡੀਆਂ। ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਏ, ਵਰਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। जी जी, ये गौरी साहब का मशवरा ये है जी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बैटरी पे करा लेंगे। अच्छा जी, शाजिब मिर्जा साहब, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, आप क्या कहेंगे? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਤੇ ਵੱਡੀ LED ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ LED ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ LED ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਗਦ ਲਿਆਓ LED। ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ। मेरा ख्याल है अली मुमताज साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह मशवरा दें
कि वो सारा बजट जो है ना जी, वो खिलाड़ियों पे लगाने की बजाय कौम को नई नकद LED लेकर। जी जुल्फी साहब, आपका क्या ख्याल है? आपने भी मैच देखा होगा। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੀ ਜਿੱਤੇਗੀ? अली साहब, मेरा ख्याल है मैच जीतने के लिए हमें बसंत के साथ साथ मैच वाले दिन भी मोटरसाइकिल और स्कूटर बंद करने पड़ेंगे। बंद कर दो मैच के लिए सारे मोटरसाइकिल बंद कर दो और ऊपर राड मत लगाइएगा क्योंकि गेंद गले पे नहीं फिरती, विकेटों में घुसती है। मिलेगा जुल्म दा बदला। यार बात क्रिकेट की हो रही है, बात को इधर उधर लेकर जा रहे हैं। अजीजी आप बताओ, आपकी क्या राय है? बताओ अपनी राय। देखें जी अली मुमताज साहब जी, वैसे तो रीना राय है, फिर ऐश्वर्या राय है, एक बीना राय भी है, मगर सच पूछे ना मेरी राय तो वो शहजाद राय है। देखा जो राय एजुकेशन में इतनी मेहनत कर रहा है उसको क्रिकेट में घुसेड़ रहे हैं, तो फिर क्यों ना आखिरी ओवर में शाहीन अफरीदी को 16 स्कोर पड़े? क्यों ना बुमराह हमारी विकेटें उड़ाए? क्यों ना फरहान पांड्या से आउट हो? जुल्फी जी तो रिकॉर्डिंग के बाद अस्पताल जाना है ना जी। यार, इनू भी नाल ले जाए। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं ग्राउंड में जाऊंगा। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਕਿਸ਼ਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਕਿਸ਼ਤ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੇਈਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ओ भाई तुम अपनी लाइट को रो रहे हो, इस मैच के बाद तो पूरी कौम की लाइट चली गई है। हाय वैसे अली मुमताज साहब, आपको एक बात बताऊं, देखें खेल खेल होता है, जी खेल में कुछ भी हो सकता है। खेल में हार जीत का कोई इतना ना दुख होता है ना इतनी कोई पागलों वाली खुशी होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मगर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, ओए होए होए होए। तो मैच हारने पे उतना गुस्सा नहीं चढ़ता जितना इंडियन मीडिया की आवाज सुन के गुस्सा चढ़ता। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो अजीजी, इंडियन मीडिया तो खेल को खेल ही नहीं रहने देता है। मतलब यूं लगता है कि जैसा कि ये मैच नहीं हो रहा, कोई जंग हो रही है। मैच जीत जाएं तो पागल हो जाते हैं, हार जाएं तो पागल हो जाते हैं, और ऐसी ऐसी बदतहजीबी का मुजाहरा करते हैं, ऐसे ऐसे मुगलजात बकते हैं कि इंसान ये सोचने पे मजबूर रह जाता है कि ये सिर्फ खेल ही तो है, किसी एक टीम ने जीतना है, किसी एक टीम ने हारना है, पर वो आपे से ही बाहर हो जाते हैं। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन रेट बहुत अच्छा है। हाँ भाई एजुकेशन जो है वो तो आपकी तहजीब से पता चलता है। बिल्कुल सही बात। मेरा मतलब है इतनी बद तहजीबी का मुजाहरा करते हैं, लगता है सारी कौम पागल हो गई है। हाँ और मुझे तो ये भी ज़हन में आ रहा होता है कि कहीं ये इनके तबसरे सुनते सुनते गौरी ना शुरू हो जाए। एम्बुलेंस, इमरजेंसी। अच्छा, मैंने इसी पर ना एक इंडियन रिपोर्टर को ऑनलाइन एंगेज किया हुआ है, आइए उससे बात करते हैं। धन्यवाद अली मुमताज साहब। जी सुशांत त्रिवेदी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया हूं। मुझे पता है कि अभी जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरा उत्साह है, वो पाकिस्तानियों के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बड़ा खुशी का समय है पूरे भारतवर्ष में। ठीक, क्रिकेट के बारे में बताइए कि क्या कहेंगे आप? क्या शानदार खेल हुआ है, क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हुआ है। यानी कि जब हिंदुस्तानी बल्लेबाज पिच पे उतरे तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे बैठे हुए थे जैसे हस्बे हाल में हमारे मित्र बैठे हुए हैं। यानी ये हमारे खिलाड़ियों को भी गोगा और जुल्फी समझता है। अली मुमताज साहब, जब बल्लेबाजी खत्म हुई और हिंदुस्तान ने गेंदबाजी शुरू की है तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ऐसे गिराया है जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं।
यानी कि कोई रन नहीं बना और साहबजादा फरहान पहले ही ओवर में चल दिए। बहुत कमाल, बहुत बढ़िया भैया। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਠੇਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। कर लीजिए, कह लीजिए जो आपके मन में आए। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी खेल के मैदान में कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें कर सकते हैं। और भाई आप भी मैदान में वो काम नहीं दिखाते जितना टीवी पे आप लोग बैठ के बकवास करते हो। बिल्कुल। धीरज रखिए, धीरज रखिए। क्षमा चाहते हैं। हमें पता है, हमें इस चीज का एहसास है कि हिंदुस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा ही काम दिखा दिया। अरे पाकिस्तान जैसी टीम के लिए 126 रन भी बहुत थे, 175 बना दिए। क्षमा कीजिएगा, हमें अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, 126 से जितने ऊपर हैं वो सारे रन आपको शापर में डाल के वापस कर देते। ओ मिस्टर सुशांत, हो जाओ जरा शांत। मैच तो हम पहले भी जीते हैं और अब भी जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन आपकी टीम ने हार के जो हमारे कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, उस पे हमारी कौम बहुत हंसी थी। बहुत बढ़िया। हंस तो इधर पूरा हिंदुस्तान भी रहा है कि आपकी हमारी तो कोई बराबरी नहीं है। हिंदुस्तान की एक शक्तिशाली टीम है, भला पाकिस्तान से मैच बनता ही नहीं है। भाई शक्तिशाली, बड़ा तेरा कच्चे अखरोट का मुंह है। आज भी अगर टोटल वनडे मैच देखो और टोटल टेस्ट देखो तो हम ज्यादा जीते हुए हैं। हाँ जी। और मैनू ईमान लाल नहीं समझ आ रही कि तू एनक लाई है या किसी रोड़े ते किसी ने एनक रखी। अब आप एक मैच जीत के पागल हुए हैं। याद करें, हमने जब खेलने से इनकार किया था तो आपकी सारी कौम, आपके हुक्मरान, आपका बोर्ड मिन्नतें करता फिरता था हर एक को कि इनसे कहें हमसे खेलें। हाँ जी। वो जो हमारे इनकार पे आपकी कौम ने टिकटें वापस करनी शुरू कर दी थी, वो क्रिकेट मैच की टिकटें थी, अजंता एक्सप्रेस की टिकटें नहीं थी। याद करो, हमारे इनकार की वजह से आपके बड़े बड़े स्पॉन्सर पीछे जाना शुरू हो गए थे। अंबानी ने कह दिया था मैच नहीं होना तो मेरे पैसे इधर ले आओ। मिस्टर सुरसांप भाई, अगर हम आपके साथ क्रिकेट ना खेलने आते, ना मैच खेलने आते, तो आपका क्रिकेट का कारोबार ठप हो जाता। आपका क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट छोड़कर ग्लोरी और बीड़ी बेचना शुरू कर देता। बहुत बढ़िया। देखें, 100 बातों की एक बात है, सारी जिंदगी पाकिस्तान ये याद रखेगा कि कैसे भारत ने उसे फरवरी में वर्ल्ड कप में हराया था और कैसे भारत ने आपको पिछले साल मई में हराया था। पिछले साल मई को हराया था। जी जी। और जेएफ थंडर 17 आया ही। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीरियस होके सोचना चाहिए हाँ जी। कि आखिर क्या वजह है कि हमारे तालीमी अदारे मंशियात के अड्डे बनते जा रहे हैं। क्या है जी अहम बात जो आप फरमाना चाह रहे हैं? सुन रहे हो जरा? सुना मैंने। यानी तंजिया कह रहे हैं, फरमाना चाह रहे हैं। हाँ, मुखातब आपसे है, मेरे से तो नहीं है, आपको ही बात करनी पड़ेगी। फरमाना नहीं जी, अर्ज करना चाह रहा हूँ जनाब। जी जी। ये जो हमारे पिछले हफ्ते शोज थे, आखिरी दिन एक ऐसा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जी जी। कि मैंने सोचा कि जितना ये नाजुक और खौफनाक वाकया है, इसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। जी। वैसे तो लोगों ने उसे ट्रोल श्रोल करके तो मजाक मयूक में टाल दिया था, ऊपर से ये मैच था जो, इसकी वजह से खामोशी हो गई। हाँ जी। वरना बड़ा ही नाजुक और बड़ा ही गमगीन वाकया है। ओए होए होए होए। यार क्या वाकया है, बताओ तो सही। भाईजान, ये वाकया सिंध यूनिवर्सिटी के दाऊद कैंपस का है, जहां यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने मुबैना तौर पर देवदास 3 का ऑडिशन देने की भरपूर कोशिश की है। आपने देखी होगी वो वीडियो जी जी। कि वो भाई साहब माशाल्लाह वाइस चांसलर के ओहदे पे तैनात हैं और टुन होके और बड़के और तकरीर कर रहे हैं और बजिद हैं। बाकी दोस्त उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो तकरीर करने के शौक में लगे हुए हैं और साफ पता चल रहा है कि ये इस वक्त होश में नहीं है। हम लोग इस बात पर हंस रहे हैं, लेकिन असल में ये रोने का मुकाम है। हाँ जी बिल्कुल। वो भी ऊंची ऊंची रोने का मुकाम है।
सबसे पहले तो सिंध के हुक्मरानों का रोना बनता है, हाँ जी क्योंकि उन्होंने इस भाई साहब को अदारे का सरबराह बना के वहां बिठाया हुआ है। जी। फिर रोना बनता है वालदैन का, जिनके बच्चे ऐसे लोगों के जेरे साया तालीम हासिल करने जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन नशई बन के लौटते हैं। हाय हाय। अब देखे ना, हमारा तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, हम तो हर महीने जरूर ये डिस्कस करते हैं हाँ कि जी। खुदा के वास्ते ये जो मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है तालीमी अदारों के अंदर, जी 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 इसका खुदारा कुछ बंदोबस्त करें। बिल्कुल। मगर क्या करें, ये जो मैं कह रहा हूं कि रोना बनता है, मैं तो कहता हूं कि पूरी कौम का रोना बनता है कि हम एक ऐसे मामले को हंसी और ट्रोलिंग में उड़ा रहे हैं जिस पर सीरियस होकर सोचना चाहिए हाँ जी कि आखिर क्या वजह है कि हमारे तालीमी अदारे मंशियात के अड्डे बनते जा रहे हैं, ओए होए। और सीखने वालों से लेकर सिखाने वालों तक सब नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, मैं सारे प्रोफेसर असातिज़ा को नहीं कह रहा, बड़े प्यारे बड़े बड़े अजीम लोग हैं ये, जो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। मगर अब हर अदारे में ना जी इस तरह के ये वाइस चांसलर साहब जैसे नशई मौजूद हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद सिंध हुकूमत ने हस्बे तवक्को ये जो वाइस चांसलर हैं जी जी और फोकल पर्सन अदर शाह को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। हाँ जी। लेकिन प्रो वाइस चांसलर का कहना है कि एआई की मदद से मेरी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लो। क्योंकि मैंने असातिज़ा की हाजिरी के हवाले से बहुत सख्ती की हुई थी, अच्छा। इसलिए वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। वाह। और यार क्या बात कर रहे हो भाई, ये खुदा का वास्ता है, ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि आप कह देंगे बोतल में जैतून का तेल था, ना ऐसे करो। आप एक तालीमी अदारे में बैठे हुए हो। अच्छा, बीबीसी के मुताबिक प्रोफेसर अदर शाह ने कहा कि स्टूडेंट्स वीक और फेयरवेल की तकरीबात की सरगर्मियों को जी जी। सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है अच्छा। ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। बहरहाल इंक्वायरी कमेटी हो सकता है उनकी बात को सच मान भी ले, हाँ जी हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान के तलीमी अदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जो है वो तो अपनी जगह एक सवाल है बहुत। कि हाँ भाई इतने सारे अदारे और इंतजामिया मिलकर तालीमी अदारों को मंशियात से पाक क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल। क्यों हर दूसरे दिन किसी ना किसी तालिब इल्म की खबरें मंदरे आम पर चलने लगती हैं? मैं अगर आपको सिर्फ सरकारी रिपोर्ट बताऊं तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अच्छा। आप सोच ही पड़ जाएंगे कि ये तालीमी अदारों से मंशियात पकड़ी गई है या गंदम के आटे की सप्लाई पकड़ी गई है। ओए होए होए। और ये भी मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट यानी कौमी असम्बली के ईवान बाला में एक रिपोर्ट पेश की है, अच्छा जी। जिसके मुताबिक सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान के तालीमी अदारों से 41 मन यानी कि 1600 किलोग्राम यानी 1.5 टन से भी ज्यादा मंशियात बरामद हुई। तौबा तौबा तौबा। और ये वो मंशियात हैं जो पकड़ी गई हैं, अच्छा। जो इस्तेमाल हो गई हैं उनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिन लोगों ने मंशियात को रोकना है या तालिब इल्मों को मंशियात से रोकना है, हाँ जी हाँ जी। वो खुद इसके इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। तौबा तौबा। ओए होए। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ जी। मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है कि अब भी कहता हूं भाई, जिस दिन थाने के एसएचओ या सर्कल के एएसपी डीएसपी या टाउन के एसपी ने फैसला कर लिया कि जी, इसके जी। इलाके में मंशियात नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी। बिल्कुल कोई माई का लाल उसके बाद मंशियात नहीं बेच सकता। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन यहाँ हर साल 12 से 15 पुलिस एहलकार तो खुद मंशियात फरोशी और स्मगलिंग के केस में पकड़े जा रहे हैं। हाय हाय। खुद पुलिस एहलकार मंशियात फरोशी में मुलव्वस पाए जाते हैं। तौबा तौबा। ये दिसंबर 2025 में पंजाब पुलिस के 12 एहलकार पकड़े गए थे। अच्छा। 3 दिन पहले पैरा फोर्स का एहलकार मंशियात बेचते हुए पकड़ा गया है। हाय। तो वो कैसे लोगों को मंशियात बेचने से रोक सकते हैं? इतने अफसोस की बात। और फिर ये जो लोग पकड़े जाते हैं, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर ऐसे ही मोतल शोतल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बहाल हो गए, फिर किसी ना किसी कुर्सी पे बैठे। हाँ जी। यार खुदा के वास्ते ना करो ऐसे, कौम के साथ इस तरह ना करो। बिल्कुल।
और कहीं किसी जगह पे जाके और किसी मामले में, मैं नहीं कहता कि रिश्वत ले लें, चाख मार लें जो मारनी है, गुनाह खटें जो कटने हैं, बिल्कुल ये ना करें। खुदा के वास्ते कौम को नशई ना बनाएं, ना बनाए, बिल्कुल बच्चों को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में मंशियात सप्लाई ना करें, खुदा के वास्ते, वरना काम हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगा। मैं हैरान होता हूं कि जो पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सपोर्टर पकड़े जाते हैं जी, जी, या जी। उनके साथ मिले हुए पकड़े जाते हैं, हाँ जी, यार उनको क्यों नहीं सख्त से सख्त सजा दी जाती? हाँ, उनको तो आम आदमी से डबल सजा मिलनी चाहिए और सही बात। उनको तो छोड़ना चाहिए ही नहीं। हाँ। अभी मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था तो कुछ दिल को राहत हुई कि हमारे गुजरांवाला में जो सीपीओ लगे हैं ना जी, डॉक्टर सरदार गयास गुल साहब, जी, उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने कहा कि जो मंशियात फरोशों के साथ मिला हुआ मुझे को पुलिस एहलकार पकड़ा जाएगा, जी, जी, मैं उसे मुअत्तल नहीं करूंगा, मैं उसे नौकरी से फारग करूंगा बहुत और ऐसा ठोक के केस बनाऊंगा कि आप दोबारा कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। वाह वाह, मैं तो सरदार साहब से भी कहूंगा कि इनको सिर्फ छोड़े ना, इनको जेल में डालें, इनको जेल में डालें, ताकि इनको पता चले कि किस तरह कौम को बर्बाद करते हैं, किस तरह आप अपनी अगली नस्ल को खराब कर रहे हैं, किस तरह आप मुल्क के जो अगले निगहबान हैं उनका ध्यान आप किस तरफ लगा रहे हैं, किस तरह उनके दिमाग खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, भाई लोग अपनी अगली नस्ल को सेहतमंद बनाने पे लगे हुए हैं, जी, वो अगली नस्ल की सेहत का ख्याल रखने के लिए जुटे हुए हैं। जी, जी, हम मंशियात फरोशी करके उनको नशे पे लगाने पे लगे हुए हैं। हाय, हाय। बहुत अफसोसनाक है अजीजी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।